آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ کے دعائیں ہیں۔ بات کری حضرت آپ نے ان سے؟ نہیں، ابھی بات نہیں کی ہے حضرت۔ اچھا، ہاں، ابھی بات نہیں کی ہے۔ باقی ان کی ایک بات تو وہ والی تو ٹھیک ہی ہے جی جی، جو انہوں نے اذان کے تعلق سے بات کہی ہے۔ اچھا ہاں، وہ بات تو ٹھیک ہی ہے۔ باقی ان سے میں بات کر لوں گا، حوالہ بھی لے لوں گا کہ کون سی بات کہاں سے کیسے ہے کیا ہے۔ جی جی، ہوں وہ تو حضرت ایک بری شریف میں ایک تو علاقہ میں نے ہے کل وہ۔ شاید آپ کو بتا دیا تھا، کل ہوئی تھی بات، آج ہوئی تھی؟ ہاں، آ رہی تھی آپ کی ہماری بات۔ اچھا اچھا، ہاں۔ جی ایک اور کال آ گیا جانے کس کا یار، کال ریسیو کر لیتا ہوں میں، کون ہے؟ جی جی، ٹھیک ہے۔ ہیلو، ہلو، جی کون صاحب؟ مغفر بھائی؟ جی اچھا، پتہ نہیں ان کی آواز کیوں نہیں آ رہی۔ ہیلو، جی حضرت، جی جی، آپ کی آواز تو آ رہی ہے، ان کی آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ فون بھی لگ رہا ہے کہ ہیں ابھی لائن پر، شاید اچھا، ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، ہماری آواز پہنچ رہی ہوگی، جی جی جی، ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ اچھا، ہاں، کال آ گیا دوبارہ سے۔ ہیلو، ہلو، جی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہاں ہاں، جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی جی، کون صاحب بول رہے ہیں؟ طارق انور بات کر رہے ہیں۔ طارق انور؟ کہاں سے؟ ابھی پرزینٹ ٹائم میں تو ممبئی میں ہیں ہم، اچھا رہنے والے بہار سے ہیں۔ اچھا اچھا، کون سی جگہ؟ کیا کون سی جگہ؟ کیا ابھی کہاں پہ ہے؟ نہ، بہار میں کون سی جگہ ہے؟ بہار پورنیہ ڈسٹرکٹ۔ پورنیہ؟ پورنیہ سے۔ اچھا اچھا، اور بامبے میں؟ ہاں، بامبے میں کہاں ہے؟ ممبئی میں ہم یہاں پر کنویر ہے نا، سینٹرل گورنمنٹ ریلوے میں ہم ہیں۔ ریلوے میں؟ PWI ہوں میں، سیویل انسپیکٹر ہوں میں اچھا اچھا انڈین گورنمنٹ میں۔ اچھا، یہیں پہ ہم، اور یہ نمبر آپ کا ہم یوٹیوب سے لیے۔ اچھا اچھا سن رہے تھے آپ کی بات۔ اچھا، اور JNU سے ہماری تعلیم ہوئی ہے۔ کہاں سے؟ JNU سے۔ JNU؟ اچھا اچھا، اور میں BTech سول انجینئر ہوں۔ بدیش سے؟ BTech؟ بی ٹیک؟ ہاں۔ اچھا اچھا، یہ بات ویڈیو آپ کا سنے جی اور یہ ہے، یہ سب بات یہ ہے، تو ہمارا یہ آپ سے کہنا یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے آدمی کو؟ فی الحال آپ بیسک کیا چیز ہے کہ ایک مسلمان، ہم اگر اپنے آپ کو کہیں ہم مسلمان ہیں تو کیا چیز ہے کہ جو بیسک چیز بتائیے؟ جی انشاءاللہ سب بتائیں گے، ہونا ضروری ہے مسلمان۔ جی جی جی، تو آپ ریلوے میں سرکاری نوکر ہیں؟ ہاں، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی کچھ نوازا ہے، اور لگ بھگ سیلری بھی لگ بھگ 30,000 سے 40,000 اور شاید 40-50 کے آس پاس ہو سکتی ہے، پلس بھی ہو سکتی ہے اس سے، اور شاید آپ انسپیکٹر بتا رہے ہیں سر؟ ہاں، PWI ہے، سیویل انسپیکٹر۔ جی جی جی، PWI، اچھا، یہ RPF آپ ہی کے انڈر میں آتا ہے؟ نہیں، میں سیول میں ہوں، ٹرین چلتی ہے نا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا آپ سول میں ہیں؟ چلتی ہے، ہاں سیول میں ٹرین جو چلتی ہے تو ان کا میں جو ہے سمجھ لیجیے کہ ٹرین کا جو آپ سمجھیں گے اپنا لینگویج میں وہ روڈ ہے، جی جی روڈ، اس کو ٹریک بولتے ہیں، وہ ٹریک بناتا ہوں میں۔ اچھا،
ट्रैक में क्या प्रॉब्लम है, ट्रेन कहाँ से कर लेगा, क्या लेगा नहीं है, क्या प्रॉब्लम, गाड़ी यहाँ से कैसा चलना है, क्या चलना है नहीं है। अच्छा, कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ से किधर को निकालना है। हाँ, रास्ता में क्या प्रॉब्लम है, न्यू लाइन बनाना है, इस पर इस गाड़ी जो ट्रेन बनाए तो कितनी गाड़ी चलेगी, यहाँ से लाइन बढ़ाना है तो जी क्या कैसे क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जी सर, जी सर, तो समझ लीजिए कि ट्रेन के रोड से रिलेटिव है हमें। जी सर। तो सर आपने दीनी तालीम के साथ साथ मतलब दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल की है। दीनी तालीम इतना मेरी नहीं है, मदरसा में हमारी तालीम नहीं हुई। अच्छा सर, बस यही है कि जो है बस घर पे तो रहने वाले। जी सर। तो सर अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आपका ताल्लुक किन लोगों से है, किस तबके से है, किस जमात से है, कुछ बताएंगे सर। देखिए जमात से जो है, और सर मेरे साथ एक भाई और है। और ये कॉल रिकॉर्ड पे लगा हुआ है शुरू से ही। और आपका कॉल भी रिकॉर्ड पे है। हाँ सर, तो मतलब जिस भी जमात से होंगे आप उसी का ही बताना सर, या अगर इसमें नॉलेज ना हो। आप सुनिए ना, आप जो बोले वो बात। जी सर। हमारा उठना बैठना जो है, जिस तरह से हमारा उठना बैठना, अभी एक शकील अहमद खान साहब थे। शकील अहमद खान साहब वो झारखंड के रहने वाले थे। अच्छा। लेकिन वो जो है वो किसी जो है ना, पहले जिस तरह से अभी आप पूछे ना मतलब क्या है नहीं है क्या है। जी सर। तो वो मेरा रूम पार्टनर भी था। अच्छा। तो वो अभी फिलहाल वो चले गए हैं गाँव, वो जी रिटायर भी हो गए, वो छोड़ दिए जी। तो वो चले गए। तो वो मेरा रूम पार्टनर था जी, लेकिन उनका सिद्धांत अलग था। अच्छा। उनका सिद्धांत ये था कि जो है एक ही मस्जिद में जाएंगे जी, और जो है किसी से जो है ना, तो यही जिस तरह से अभी सवाल पूछे ना किस मसलक के हैं, कौन है न है, जी, तो उनका फर्स्ट टाइम यही क्वेश्चन होता था किसी से भी मिलने का। माशाल्लाह। लेकिन हम उनके साथ रहे जी, शुरू तक। हाँ। और बाकी हमारा अभी भी प्रेजेंट टाइम में जो है लोग सब जो है ना, जो हमारा पार्टनर है जिसके साथ उठना बैठना होता है। जी सर। तो दोनों तरह के लोग हैं। जी सर। कोई किसी मसले को मानता है, कोई किसी को बोथ से नहीं, सभी इक्वल सबको मानता है। जी मानता है। जी। हमारा आप बोलिएगा, आप ये क्वेश्चन कीजिएगा आपका अकीदा क्या हाँ है ना, आप बोलिएगा आपका क्या अकीदा। जी सर। हमारा अकीदा ये था, हमारा फर्स्ट अकीदा है कि ह्यूमैनिटी बचनी चाहिए, मानवता बचनी चाहिए, फर्स्ट मेरा ये। और चाहे जिस धर्म से हो, जैसे भी, ठीक बात, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। इंसानियत बचनी चाहिए, इंसानियत को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर इंसानियत को ठेस पहुंचा तो फिर चाहे आप हमको अभी भी, अगर हमको आप कह दीजिएगा कि आप काफिर हैं तो हमको उसमें कोई भी एतराज नहीं है, तब हमको अपना अपने पर हमको नाज रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप बोलिएगा कि नहीं इंसानियत नहीं बचनी चाहिए, आप ऐसे कीजिए, तो फिर वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आपको हमको इल्जाम लगाइएगा तो वो आपकी मर्जी, आप इंडिपेंडेंस। सर तो मेरा काम किसी पर इल्जाम लगाने का नहीं है। हाँ, हम बोले नहीं है, हम आपको नहीं कहे हैं कि आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं या हम पर। हम बोल रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट ये जो है, यही मेरा अकीदा और बिलीफ है कि इंसानियत बचनी चाहिए और इंसानियत को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर कोई भी धर्म, कोई भी अगर इंसानियत को खतरा बता रहा है, इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर हम उसके पक्ष में नहीं। जी जी। तो सर आपसे बस यही है कि हमको एक मुस्लिम होने के लिए जी क्या करना चाहिए और क्या होनी, क्या चीज हमारे अंदर में होनी चाहिए। जी, वो सब इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, जवाब भी दूंगा। जवाब दे दीजिए और बाकी और दूसरा इधर उधर ज्यादा नहीं जाना। बस इतना ही बताइए कि अगर आप में ये सब चीज है तो आप मुसलमान हैं, तो हम अपने आप को देख लेंगे कि हाँ हमने ये। चलिए मैं इंसानियत के ताल्लुक से ही आपको बता देता हूँ। ये सिख लोगों को आप जानते होंगे सर। किसको?
सिख लोग हाँ सीख से जानते हैं, उस धर्म के बारे में पढ़े भी। बड़ी भलाई है उनके अंदर, बड़ी इंसानियत है, बड़ा लोगों का फायदा चाहते हैं, बड़ा लोगों की जो है मदद करते हैं। गुरुद्वारे में बड़े लोग उनके यहाँ भूखे प्यासे लोग आके अपना गुजारा करते हैं, खाना खाते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? हाँ इस बात से सहमत है। लोगों के साथ वो अच्छाइयां ही करते हैं ज्यादातर, बुरे लोग तो सभी में हैं। सभी में अगर 10-5 कहीं कोई बुरा निकल आए तो पूरी बिरादरी को बुरा नहीं कहा जाएगा। हाँ। है ना सर? पुलिस स्टाफ में बहुत सारे लोग बड़े अच्छे हैं और उसमें मतलब 1-2 बंदा अगर ऐसा भी निकल आता ना जो पूरे स्टाफ की बदनामी करा देता है ना सर? हाँ, तो क्या वो इतनी इंसानियत दिखाने के बावजूद ईमान वाले हैं सर? कौन वो? जी, वो ईमान वाले नहीं है ना। उसका अपना इंसानियत एक अलग मामलात है। हाँ ठीक है सर, ईमान एक अलग मामलात है। ठीक है सर, ईमान का होना जरूरी है। इंसानियत तभी आएगी हकीकत में कि जब ईमान होगा मोमिन के अंदर। ठीक है सर जी, हमारा मानना यह है कि आखिरत के लिए ईमान की जरूरत है और जिसके अंदर ईमान होगा उसके अंदर इंसानियत भी होगी। और इंसानियत इसी का नाम है कि जिस नबी का कलमा पढ़ता है उस नबी की इज्जत करे। ठीक है सर, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उसी नबी के लिए हम ऐब तलाश कर रहे हैं, उस नबी में हम कमी निकाल रहे हैं। कहाँ की इंसानियत है, आप मुझे फैसला करके बता दें सर। नहीं देखिए, जो है जिसका जो है फेथ जिस पर है, बिलीफ है ना, जिस पर जिसका फेथ है तो वो तो उनको फॉलो करेगा। फॉलो करने के साथ साथ इंसानियत मैंने किसी आलिम का किसी मौलाना का नाम नहीं लिया सर, मैंने अपने आका का तज़किरा किया है। नहीं, आलिम मौलाना पर तो बिलीफ का है ही नहीं। बिलीफ के लिए सिर्फ नबी और अल्लाह के सिवा। हाँ सर असल में सर बात ये है ना सर, आपने मुझसे इंसानियत की बात की थी तो मैंने इंसानियत के ताल्लुक से ही ये बात कही है कि वही इंसानियत के ताल्लुक से बात हम आपको जी सर हाँ सर, उसी का मैं जी बताएं। जिस धर्म की बात बोले हैं जी सर, वो किसी को फॉलो कर रहा है। हाँ ठीक है ना जी, और उसके साथ वो इंसानियत को अपना रहा है। उसी की तुलना में आप हमको कहिएगा, हम प्रोफेट को फॉलो कर रहे हैं, पैगंबर नबी को, ठीक है ना, लास्ट प्रोफेट जो है उनको हम फॉलो कर रहे हैं जी, और उनको फॉलो करने के साथ ही हमारे अंदर में इंसानियत जी। तो सर जो हमारे आका का कलमा पढ़ के और हमारे आका की ही इज्जत ना करे, उनके लिए बेअदबी वाले जुमले इस्तेमाल करे, क्या उसके अंदर इंसानियत है सर? नहीं, अगर जब वो प्रोफेट को कुछ गलत कह रहे हैं या जी कह रहे हैं जी, तो वो फिर समझिए कि या तो हम अपने अंदाज में, अगर हम अपनी सोच से, कोई कहेगा उसको कोई पागल कहेगा, कोई उसको काफिर कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उसको जो मन में होगा जो कुछ कहेगा, जिसको जो मन में आएगा वो उनको कुछ कहे, जिसको जो होगा वो इंडिपेंडेंस उसको सब कुछ कहेगा उनको। अच्छा सर ये बताइए, ये पुलिस महकमा किस लिए बना है? हिंदुस्तान का कानून जो है वो किस लिए ये बना है और इसकी मतलब नाफरमानी करने वाले पर और इसका उल्लंघन करने वाले पर जो है हुकूमत की तरफ से क्या क्या सजाएं हो सकती हैं सर? उनकी सजा का उनका अलग अलग है, जैसा क्राइम होगा वैसे उस पर लगेगा वो। बिल्कुल सर मान लीजिए जैसे किसी ने जो है बगैर टिकट ट्रेन में बैठा, क्योंकि आप ट्रेन के ताल्लुक से वहां रहते हैं और वहां का निजाम आप संभालते हैं, तो जहां से बैठा है वहां का टिकट लगेगा या फिर जहां से ट्रेन चल के आई है वहां तक का टिकट लगेगा सर? चलो वो जहां से बैठा है वहीं लगेगा। नहीं मतलब वो बगैर टिकट बैठा
और पकड़ा गया, टीटी ने पकड़ लिया। टिकट पकड़ लिया है, अगर टिकट बैठा है तो फिर उसको फाइन लगेगा। हाँ सर, फाइन लगेगा। अभी कई प्रोसेस है, कई प्रोसेस है उनके। अगर टीटी को बिलीव है कि आप, वो बोलेगा पिछले स्टेशन में ही बैठे हैं तो वहीं पर है, वो टीटी के हाथ में है। उसको अगर कानून की बात किया जाए तो जहाँ से गाड़ी रिलीज हुई है वहां तक का उनको फाइन देना होगा। हाँ सर, जी सर, मैं वही कानून की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, टीटी का मन तो ये है कि तरस खा के छोड़ भी देता कि चलो यार गरीब आदमी छोड़ो, है ना सर। मगर कानून जो बताता है 6 महीने की सजा बताता है और इतने रुपए का जुर्माना हो सकता है, इतने महीने की सजा हो सकती है, ये सब बताता है ना सर कानून। अच्छा, मान लीजिए सर किसी बंदे ने किसी इंसान का जो है गला घोट के उसको मार डाला, उस पर भी जो है दफा 302 लगेगी सर, 2 ही लगेगी ना। हाँ, आर्टिकल 2, 3 ये सब क्राइम नहीं आता है। अगर किसी ने उसको किसी तेज धार हथियार से मारा तब भी दफा 302 ही लगेगी सर। किसी ने गोली से मारा सर तब भी दफा 302 ही लगेगी सर, क्योंकि हुआ मर्डर है ना, चाहे किसी भी तरह से उसने किया, हुआ मर्डर है। इसी तरह हमारे नबी की शान में तौहीन चाहे किसी भी अंदाज में कोई करे, हुई तौहीन है। और हुजूर की तौहीन करने वाला मुसलमान नहीं रहता, काफिर होता है। मानेंगे ना सर इस बात को। ये तो है। मैं कानून की तरफ से भी कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने रख सकता हूं, और हमारे नबी के ताल्लुक से तो आप सब जानते ही हैं कि हुजूर की शान में अदना सी भी तौहीन करने वाला शख्स मुसलमान नहीं रहता, दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है, खारिज हो जाता है। तो सर मैं इतना ही कहूंगा कि दुनियावी तालीम की बहुत ज्यादा आपको जानकारी है और दीनी मामलात में आप थोड़े से कमजोर हैं, तो इसलिए आप शायद मेरी बात को पसंद ना करते हो। आपने अगर कोई ऑडियो सुनी हो, या हो सकता है कि ऐसी ऑडियो सुन ली हो, इसी वजह से हमने आपसे ज्यादा हमारा आपको क्वेश्चन भी हमने सिर्फ इतना ही बोले। जी सर, कि जो है आप, तो अगर हम एक एग्जाम्पल की तरफ अगर आप मान लीजिए कि हम अभी फिलहाल मुस्लिम नहीं, मान लीजिए 2 मिनट के लिए आप, तो हम अगर मुस्लिम बनना चाहें, ठीक है ना जी, ईमान वाला बनना चाहें तो जी सर, क्या हमको करना पड़ेगा आप हमको। हाँ सर, फिर हम उसमें फिर आपके बाद से फिर हम अपने अंदर में मिलाएंगे। हम देखिए सर, हम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। जी सर, कोई गैर मुस्लिम है और इस्लाम कबूल करना चाहता है और किसी से कह रहा है, मान लीजिए मिसाल के तौर से कोई बंदा मुझसे ही कह रहा है, तो मैं उसको कलमा पढ़वाऊंगा, ठीक है ना। पहला देश ये है कि फर्स्ट स्टेप ये है कि कलमा पढ़नी चाहिए। जी ठीक, चलिए ठीक। जब तक कलमा फिर नहीं अगर मुसलमान नहीं होगा। हाँ, फिर अगर मुझे अल्लाह ताला ने कुछ इल्म से नवाजा है तो मैं उसको बताऊंगा कि हमारे इस्लाम में कलमा, अच्छे अगर कलमा जो पढ़ेगा जी, तो कलमा आप एक हिंदी में हमको समझाइए कि वो कलमा क्या, उसका क्या, इसका मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहता है कलमा। कलमा क्या कहना चाहता है, कलमा बता रहा है। अभी अरबी में हमको कलमा पढ़ा दीजिए आप। ठीक, मैं आपको मादरी जबान और उर्दू जबान में बताता हूँ। कलमे का मीनिंग हुआ, उसका मतलब हुआ, उसका ट्रांसलेशन हुआ, वही ट्रांसलेशन बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला नहीं कोई माबूद, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के जी रसूल है, इसको इकरार करना बाय द हार्ट, दिल से। जी, दिल से इकरार करना, कबूल करना, दिल से तस्लीम कर लेना, हाँ कर लेना, है ना। फिर हुजूर से सच्ची मोहब्बत भी करना। ऐसा नहीं कि जुबान पर यहाँ से दिल से आ गया तो इसका बाय द हार्ट यानी दिल से एक्सेप्ट करने की बात आ गया तो जाहिर सी बात है, जब हाँ सर, तो आपको तो हर चीज से। हाँ सर, मगर कुछ लोग, मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा कि जुबान से कलमा पढ़ते हैं, जुबान से कलमा भी पढ़ते हुए नजर आते हैं और कहते हैं असली तौहीदी हम हैं,
ان کو دیکھیے یہی نور اعظم صاحب یہی بات سے ہم کو تکلیف ہو جاتی. دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں, جیسے اگزامپل پر ابھی ہم بتائیں, ابھی آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں کہ ایم ڈی طارق انور کو آپ ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنی چاہیے, ایک مسلم بننے کے لیے کیا کرنی چاہیے وہ بتا رہے ہیں. ہم آپ کو سن لیے, کل آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. آپ تو اپنی ذمہ داری نبھا لیے نا جی, آپ تو اپنی ذمہ داری نبھا لیے نا. تو کل سماج میں ہو یا کل آخرت میں ہو, اگر آپ سے پوچھی جائے کہ ہمارے بارے میں, تو سماج میں بھی اگر پوچھا جائے گا تو آپ نے کہہ دیجیے گا کہ ہم نے طارق انور سے اتنا منٹ بات کی, ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائے, ان کو سمجھائے. اگر یہ نہیں مانے تو اب ان کا خدا جانے, ان کا رسول جانے. ٹھیک ہے نا. اور کل آخرت میں بھی اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے تو آپ وہاں پر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے ان کو تو سمجھا دیے تھے. ٹھیک ہے نا. تو دوسرا اینگل چھوڑ, دل سے اقرار کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ان کی بات چھوڑیے, آپ ان کو جانے دیجیے وہ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. ان سے ہم کو بحث ہے بھی نہیں. آگے بتائیے. اب بولیے سر. آپ نے سن رہے ہیں آپ میرے لفظوں کو دیکھ کر شاید انسانیت کی اس لیے بات کی تھی کہ آپ لوگوں کو بڑا تلخ بولتے ہو, ہے نا. نہیں ہمارا ہم دیکھیے پھر آپ ہم نے آپ کو یہ دیکھیے آپ نے اگر ایک کس کے دل میں کیا ہے, ہاں, اور کیا ہے, اگر کوئی اندازی کوئی اس بات کو اگر وہ تو خدا اور رسول کی سوا دوسرا جیسی تو کوئی فائدہ ہی نہیں دیا ہے کہ کسی کی بھوشوانی 1 منٹ کے پہلے کا ہی کر بیٹھا تھے. اگر وہ کوئی کہتا ہے تو پھر ہم ان کے بات کو سن کر کے ہنس کر کے چل دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو میرا کہنے کا مطلب سر یہی ہے کہ انسانیت وہ نہیں. آپ پہلا ٹاپک آپ ہم کو سمجھا دیے اور وہ ہم سمجھ بھی چکے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں گے. جب تک یہ دل سے اقرار ہم نہ کریں, یہ بات کو بالکل ہم نہ مان لیں. چلیے اس پر میں ایک چیز اور سمجھا دیتا ہوں سر, جو کہ شاید ابھی تک آپ کو کسی نے بتایا بھی ہو یا نہیں بھی بتایا ہو. جی جی ٹھیک ہے سر. یادداشت دوبارہ سے تازہ کروا دیتا ہوں, یاد دہانی کروا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے بتایا ہو یا آپ نے کہیں سنا ہو. ہر کلمہ گو, ہر ایک کی بات کر رہا ہوں, ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہے سر. ابھی بات ہو رہی تھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا, اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہے. اس لیے کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے. ہاں, اس لیے دیوبندی کے جو 4 بزرگ ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے پھر ہمارے نبی کی شان میں توہین کی. کلمہ پھر بھی پڑھتے رہے. اب یہ جو ہے اب ہو سکتا ہے اس میں کہ کلمہ ہم بھی پڑھے ہیں, آپ بھی پڑھے ہیں, دیوبندی بھی پڑھا, بریلوی پڑھا, شیعہ سنی, دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں الگ الگ طریقے کے لوگ جو کہتے ہیں تو سب کلمہ پڑھا. اب اس میں کون ہے نہ ہے, 1% کوئی ہو سکتا ہے ہم ہی نہیں ہو سکتے ہیں کہ آپ ہی نہ ہو. الحمدللہ ہمیں تو اپنے کلمے پر پورا یقین ہے, کیونکہ ایمان نام ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. میں نے حضور کا کلمہ بھی پڑھا ہے اور میں حضور سے سچی محبت بھی کرتا ہوں, اور حضور کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی بھی بد مذہب الحمدللہ اس گناہگار سے آ کے بات نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ. اور میں کسی بھی بد مذہب بدعقیدے سے ڈرتا بھی نہیں ہوں, کسی بھی طرح سے, کسی بھی حالت میں, کسی بھی صورت میں. اس میں ڈرنے اور ڈرانے اور کیونکہ حضور کی محبت وہ چیز ہے کہ کسی ظالم سے, کسی دشمن سے ڈرنے نہیں دیتی. اب آپ کو وہ ٹاپک جو بات بول رہے تھے وہ بتائیے آپ. ہاں سر, میں بتا رہا ہوں کہ ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہے, ہر نمازی مسلمان نہیں ہے, ہر روزہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے, ہر زکوٰۃ دینے والا مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ حضور کا کلمہ پڑھ کے اور حضور کی ہی شان میں توہین کرتا ہے, حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کی ہی کمی نکالنے کے لیے رات و دن آنکھیں پھوڑ رہا ہے, حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کو اپنی طرح کا بشر بتا رہا ہے, حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے کمالات کا انکار کر رہا ہے,
बहुत सारी बातें मैं गिनवा सकता हूँ सर। और ये है इस्लाम के कानून का उल्लंघन करना। जिस तरह सर एक मिनट, यह है इस्लाम के कानून का उल्लंघन करना। जिस तरह के दुनियावी जो कानून है जो कि बाबा अम्बेडकर ने लिखा है ना सर, जब इस कानून का उल्लंघन करने की वजह से इंसान को सजा हो जाती है, होती है कि नहीं सर? होती है। चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे वो किसी भी सरकारी ओहदे पर वो गामजन हो, किसी भी ओहदे पर वो फाइज हो, है ना सर? चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो। मैंने देखा बहुत सारे मंत्रियों को भी सजा मिल जाती है, और सबसे बड़ा सजा देने वाला तो अल्लाह है ना सर? तो कानूनी अगर गिरफ्त में आ गया तो कोई भी हो फिर बचता नहीं। तो जो अल्लाह के कानून, हाँ सर, जो अल्लाह के कानून से लड़ता है, जो अल्लाह के कानून का उल्लंघन करता है, उसके बचने के तो कोई चांस ही नहीं है। दुनिया में चाहे कितने ऐशो आराम कर ले, आखिरत में बचने वाला नहीं है। ये देखिए, अब जो ये बात बोले, यहाँ पर बात हम और आप में हो रहे हैं, और हमारा ये जो अब बात जो की है, ये टॉपिक से हम लोग दूसरे तरफ चले गए। नहीं सर, दूसरी तरफ नहीं गए, समझाने के लिए सर बताना पड़ता है। टॉपिक से अगर आप भटकेंगे, नहीं सर, भटके कहाँ हैं? जिस नतीजा जिसको सोल्यूशन करना चाह रहे हैं, जिसको हम सोल्व करना चाह रहे हैं, इस टॉपिक को, वो सोल्व नहीं होगा। अब जिस तरह से आप ये बात कर दिए कि हम डरना नहीं डरना, ये ना वो चीज एक अलग है। ये सब बात बोलने की जरूरत नहीं सर, ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात ये है कि कोई आदमी रसूल को कुछ अशब्द बोलता है, अनडिसिप्लिन में बोलता है, कुछ जो बात नहीं बोलनी चाहिए वो बोलता है, करता है, ये सब जानता है, ये हमको भी मालूम और आपको मालूम जी। सवाल यहाँ पर हम जो बात किए वो टॉपिक से अपने लोग हट रहे हैं, उस पर आप चलिए सर। आप तो हुजूर की तौहीन करते ही नहीं ना, आप तो उन लोगों से वाकिफ नहीं हैं जो लोग तौहीन करते हैं। फिर वही बात आ गई उन लोगों से। अब वहाँ पर तो हम तो उनकी समस्या आपके पास नहीं रखे हैं। तो आप सर आप क्या करते हैं? चलिए आप बताइए सर, आप क्या करते हैं फिर? नहीं, हम आपको बताएं ना कि एक मुस्लिम होने के लिए हमको क्या करनी चाहिए, आप बताइए, फिर हम बताएंगे आपने कि हम ये सब चीज करते हैं और ये चीज हम नहीं करते हैं। सर एक मुस्लिम बनने के लिए हुजूर का कलमा पढ़ना है। पहला आप बता दीजिए हमको, पहला हम समझ में आ गया हमको, दूसरा बताइए। फिर जब मुसलमान हो गया तो इस्लाम के जो अरकान है वो उस पर जो है फिर आ जाएंगे। नमाज पढ़ना उस पर फर्ज हो जाएगा, ज़कात देना उस पर वाजिब हो जाएगा, हज करना फर्ज हो जाएगा। फिर ये जो कानून है इस्लाम के जो अरकान है वो उसके लिए हैं। चलिए सबको फॉलो करेंगे तो हम मुस्लिम हो गए ना। बिल्कुल मुस्लिम हो गए, मगर सबसे पहले हुजूर की मोहब्बत सर। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं, रातों दिन कलमा पढ़े, रातों दिन जो है अपनी जुबान से कलमा पढ़े जाए, मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे दुनिया वाले उसे कितने परहेजगार कहते रहे। बिल्कुल, वो तो पहले बार में ही आप बता दिए कि फर्स्ट टाइम वही ठीक है। हाँ, पहला स्टेप तो मेरा वही है। ठीक है सर, वो तो पहला स्टेप तो आप पहले बार बता ही दिए ना कि वो दिल से, बाय द हार्ट, दिल से उसको ये इकरार करना पड़ेगा। जी सर, जी सर, ठीक है ना। वो तो पहला स्टेप में ही आप डाल दिए उस बात को ना, है ना। तो बाकी ये सब इतना जो आप बताए, इसको अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो मुस्लिम है ना। हाँ, अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत है और हुजूर की तरफ से आपके दिल में कोई भी बुग़्ज़ नहीं है, कोई भी किना नहीं है, कोई भी आपकी जुबान से तौहीन नहीं निकलती है, और तौहीन करने वालों से अलग रहते हैं, तौहीन करने वालों के खिलाफ रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि तुम खुद तो तौहीन नहीं करते और तौहीन करने वालों का साथ देते हो, तौहीन करने वालों के साथ रहते हो और उनको गलत नहीं जानते, फिर भी मुजरिम होगे। मुजरिम हो सकते हैं क्या? ईमान से भी चले जाएंगे। फिर वही गुंजाइश देखनी पड़ेगी कि किस हद तक आप कहां तक हैं, ला इल्म में हैं कि इल्म के बावजूद हैं, आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, या नॉलेज होने के बावजूद आप उनके साथ हैं। फिर ये सब देखना पड़ेगा सर। वही फिर दुनियावी जैसे कानून है, फिर इधर भी वही बात आ जाएगी सर। अगर हम ये आपको बोले कि हम दिल से इकरार भी कर रहे हैं, जो आप बताए कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये भी हम कर रहे हैं जी सर, लेकिन तो चोर के साथ में जाकर के हम बैठ भी जाते हैं, चोर के साथ में बैठते हैं जो चोर डाकू है, क्या हम पर सजा हमको होगा या हम ईमान से चले जाएंगे? सर यहाँ चोर का मामला नहीं है,
2 मिनट की मान लीजिए चोर है या मालूम कर लीजिए कि वो अच्छा 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, है वो। अब मैं इस पर दुरुस्त जुमला अदा करता हूँ। आप पुलिस वाले हैं और आप चोरों के साथ रहते हैं, चोरों के हर मामलात आपको मालूम है, और आप चोर को पकड़ते नहीं, तो फिर आप देश के रखवाले नहीं, वहां इंसान क्या कहलाएगा? मैंने वहाँ तो वो देश का तो गद्दार हो जाएगा, गद्दार हो जाएगा। इसी जुमले में आप यहाँ ले लीजिए सर। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे तो हमारा ये वो ऑप्शन नहीं है। हमारा ये है कि क्या हमने चोर के साथ उठना बैठना किए तो हम ईमान से खारिज हो जाएंगे या तो हमको उसका पनिशमेंट मिलेगा। चोरी करना अलग मामला है सर, चोरी करना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह है। सर समझ ले मेरी बात को सर, मैं सब समझाऊंगा इंशाल्लाह। चोरी करना गुनाह है, ठीक है, इस्लाम में मना किया गया। झूठ बोलना गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है सर। गुनाह और होता है, कुफ्र और होता है सर, गुनाह और होता है, कुफ्र और होता है। हाँ, हो सकता है कि जो चोर है वो ईमान वाला हो सकता है कि जो चोर है जिसने चोरी की है या जो चोरी करता है हो सकता है कि वो ईमान वाला हो, मगर जो नमाज पढ़ता है 5 वक्त की, जो ज़कात देता है, जो हज भी करता है हर साल और तहज्जुदों में भी नमाजें पढ़ता है और हुजूर की शान में तौहीन भी करता है, समझे सर। हुजूर की शान में तौहीन भी करता है, हुजूर के कमाल को तस्लीम नहीं करता, हुजूर को अपने जैसा बशर बताता है। वही बात हम कर रहे हैं। हाँ सर, तो पहला स्टेप को ही अगर तो बार बार सर समझाना पड़ेगा, जब आप लाएंगे तो फिर सर बार बार रिपीट भी करना पड़ेगा। नहीं, वही तो पहली बार आप बता दिए कि पहला स्टेप को, हम दूसरी की बात पे नहीं जाएंगे, हम अपनी बात रखना है आपको। जी सर, जिस तरह से आप हम जो बताए कि आपको जो हम तो पहला आप जो बताए स्टेप हम उनको कबूल कर लिए। जी सर, वो कर रहे हैं, ठीक है सर। नमाज रोजा हज जो भी बताया उसको भी कर रहे हैं। तो सर आपने बात ये कही ना कि हम ईमान वाले हो गए, मगर चोर के साथ बैठ रहे हैं, तो चोर के साथ बैठने से क्या ईमान खत्म हो जाएगा? तो चोर के साथ बैठने से आपका ईमान खत्म नहीं होगा। चोर के साथ बैठने से, सुनिए, ईमान बच जाएगा। मेरी बात सुने सर। हाँ बोलिए। दुनिया का चोर है ना, दुनिया का माल चुराया है ना। हाँ, दुनिया का माल चुराया, हो सकता है चुराने वाला मुसलमान ही हो। चोर को इस्लाम ने, सर 1 मिनट सर मेरी बात सुने तसल्ली से। चोर को इस्लाम ने काफिर नहीं कहा, रसूलुल्लाह के गुस्ताख को काफिर कहा है, चाहे वो 5 वक्त का नहीं 50 वक्त का नमाजी हो। समझ रहे हैं सर? वो 5 का नहीं 50 का भी नमाजी होगा तो मुसलमान नहीं है अगर हुजूर की शान में तौहीन करता है। और जिसने दुनिया का माल चुराया है तो कोई जरूरी नहीं कि वो काफिर होगा, हो सकता है मुसलमान ही हो। इंसान है, 1 मिनट सर, इंसान है, इंसान गुनाहों से भरा हुआ है। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, मोमिन का खुला हुआ दुश्मन है। तो बहुत सारे मुसलमान हैं जो चोरी करते हैं, ये भी पता है उन्हें कि चोरी करना गुनाह है, किसी को कत्ल करना गुनाह है ना, किसी का माल छीनना गुनाह है, फिर भी कर बैठते हैं सर। करते हैं कि नहीं करते हैं सर? आपने ही ऐसे कितने लोगों को पकड़ा होगा सर। सही बात है। हम ये बोल रहे हैं आपको, अगर हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी के अंदर में आप पहला स्टेप जो कलमा बताए वो बिल्कुल दिल से इकरार कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है सर। तो पूरा उसको बिलीव और उस पर फेथ है, ठीक। उसके बाद वो ना तो नमाज पढ़ता है, ना तो रोजा रहता है, ना तो हज करता है, वो उठना बैठना भी गलत लोगों के साथ में है, और यहाँ तक कि वो चोरी डकैती भी करता है, रेप भी करता है। अब यहाँ पर भी इसका ईमान बचेगा सर? वो क्या क्या करता है ये सब मुफ्ती साहब बताएंगे कि उसके ऊपर क्या लागू होगा क्या नहीं लागू होगा, है ना सर? क्योंकि अलग अलग बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, ईमान इनका बच पाएगा। हाँ चलिए इस पर भी मैं बताता हूँ। 1 मिनट सर। एक बंदे ने हुजूर का कलमा पढ़ा,
ٹھیک ہے, بالکل. حضور کا کلمہ پڑھا, حضور سے محبت کرتا ہے, مگر دنیا کے جتنے برے کام ہیں سب کرتا ہے. جی. ایک منٹ سن لیں سر, دنیا کے جتنے برے کام ہیں, ٹھیک ہے, چوری اس نے کی, ڈاکہ اس نے مارا, قتل اس نے کیا, سب کچھ کر دیا, مگر حضور کی شان میں کبھی توہین نہیں کی. اللہ رب العزت کی شان میں کبھی بے ادبی کا جملہ نہیں استعمال کیا. ٹھیک ہے, اس کا ایمان اللہ جانے کہ کس حد تک ہے, مگر ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کو اسلام نے کافر قرار نہیں دیا, کیونکہ وہ حضور سے محبت کرتا ہے, حضور کا غلام ہے, حضور کا امتی ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے, وعدہ کیا ہے, میں بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخشوں گا. حضور نے بھی اعلان کیا, میں بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخشواؤں گا, مگر ایمان والے کو بخشوائیں گے, اسے نہیں جو حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کی توہین کرتا ہے. چلیے بڑھیا ہے. اور باقی یہ ہے, لاسٹ بات اب کر کے آپ سے بات کر کے اچھا لگا, شکریہ, جزاک اللہ. لیں گے. باقی جو ہے یہ لاسٹ میرا ایک سوال یہ ہے. جی سر. کہ اگر ہم اتنا بات کو مان رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں, یہ سب کچھ کرنے کے بعد, جی سر, اور ایک آپ کو اچھا جانکاری ہم دینا چاہتے ہیں, آپ کو سن کر کے آپ کو آشچर्य ہوگا. جی ضرور دیں. ہماری وائف جو ہے نا, وائف, جی, وہ وائف جو ہماری ہے وہ بھی آپ بریلوی ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ کی وائف بریلوی ہیں اور آپ دوسری جماعت میں ہیں, دیوبندی یا اہل حدیث؟ ہم یہ دیوبندی جس طرح جو بات ابھی آپ ہم سے ہوئی نا, آپ سے, اس سے بڑی آشچर्य کی اور سر ایک بات بتا دوں, ڈیمانڈ ہے جو بات ابھی آپ سے آپ سے جو بات ہوئی ہے ہماری, جی, جو بات ابھی آپ سے ہماری ہوئی نا, جی, اس بات کو ہم اسی بات کو مانتے ہیں اور دوسری بات کو نہیں مانتے. یہ میرا. ہاں سر, ایک اور آپ سے ہماری بات ہوئی, جو بات آپ ہم کو سمجھائے ہیں نا, جی, یہی بات ہم سمجھنا بھی چاہ رہے تھے اور اسی بات پر ہم عمل بھی کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ ابھی ہم کو سمجھائیں, اور اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں جانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے کوئی پوچھے یہ کہ جتنے بھی دنیا میں بزرگ تھے, جی, ہے نا, ان کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے, اگر ہم بولیں گے کہ ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں, تو بے شک کون ہے ایسا کہ سارے بزرگوں کو جانتا ہوگا. اگر وہ پوچھ رہے ہیں, جی, 2 منٹ کے مان لیجیے کہ اگر یہ بریلوی لوگ کے کوئی مولانا ہے یا کوئی ہے, اگر اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں, ہم نہیں بتاتے ہیں. لیکن جو ہے دیوبندی کے بھی مولانا کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم نہیں بتاتے کہ کون ہے نہیں ہے, اور پوچھتا بھی ہم سے کیسا انسان ہے یا خراب ہے, تو ہم بولتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم کیسا انسان تھے کہ نہیں تھے, کیا تھے, ہم نہ تو ان کی زندگی کو پڑھے, نہ تو ان کے بارے میں معلوم ہے, نہ کچھ ہے, ٹھیک ہے, نہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا کرتے ہیں. اگر اور زیادہ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو کیسا ہے کیا ہے, ہم کو اس کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے. تو اس بات کو جو اگر ہم کہیں تو اس سے میرا ایمان نہیں نا گڑبڑ ہوگا. ہاں دیکھیے, اب ایک چیز اور بتا دوں میں کہ حکم کس پر آتا ہے. جیسے مان لیجئے دیوبندیوں کے 4 اکابر ہیں, ان کے کفر کا آپ کو علم نہیں ہے, آپ دھوکے میں ادھر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں کون سی توہین کی ہے, آپ پر حکم کفر نہیں آئے گا. ابھی جو آپ بات ہم کو سمجھائے, ایک منٹ سمجھ لیجیے, جو بات آپ ہم کو سمجھائے, ہم اگر اس بات کو فالو کریں گے تو ہم دیوبندی ہوئے یا بریلوی ہوئے یا سنیے سر, سنیے, مگر جاننا ضروری ہے نا. جیسے آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے, اسی طرح دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے سر. دنیاوی تعلیم حاصل کرنا فرض نہیں, بلکہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے, اتنا جتنا کہ اپنے مسئلے مسائل انسان حل کر لے. ٹھیک ہے سر, بالکل. اچھا سر, ایک چھوٹی سی بات کہوں گا میں. ابھی آپ کو اس سے پہلے کوئی ایک بات بتانے والا تھا, مگر میں بتا نہیں سکا. آپ کچھ بتا رہے تھے تو میں مطلب اس کو بول نہیں سکا. آپ نے کہا کہ میں ان سب چیزوں پر بلیو نہیں کرتا, میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتا ہوں, مگر ہمارے گھر میں جو ہیں وہ بریلوی ہیں, بریلوی خیالات کی. سر بریلوی, ہاں, بریلوی خیالات کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا, جس طرح سے وائف ہے نا ہماری, جی, تو وہ ہے کہ اپنا وہ چاہتے ہیں. اچھا, ان کے گھر والے, ہاں ان کے گھر میں کوئی عالم وغیرہ تھوڑی ہوں گے. ان کے آپ کے سسرال میں
मालूम में है उनके, नहीं है ना? उन लोगों ने भी दुनियावी तालीम हासिल की होगी। हाँ वो लोग के यहाँ भी कोई मदरसा का कोई मदरसा हाँ, तो उनको भी क्या पता, मतलब। और आदमी पैसे को देखकर अपने बच्चे को सहूलत के लिए कहीं भी दे देता है ना सर? और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है एक दूसरे को अगर पसंद कर लेते हैं तो चाहे कोई सी भी कास्ट हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, फिर मतलब एक दूसरे में आपस में चुन के निकाह कर लेते हैं। बहरहाल वो जाने दीजिए। तो यहाँ अब मैं वो बात नहीं बता रहा हूँ, मगर मैं आपको बताता। खैर, इधर में कुछ कहने वाला था आपसे, जाने क्या जहन से बात निकल गई, वो बताने के चक्कर में। हम बस वही बात, हाँ, मैं ये बता रहा था कि हुक्म कुफ्र उस इंसान पर आता है जो हकीकत को जानता है। जैसे थानवी जी ने क्या कुफ्र किया है उसको मालूम है, और फिर भी वो उसको ये नहीं मानता यार इसने हमारे नबी की शान में तौहीन की है, इस पे हुक्म कुफ्र आता है, फिर भी वो उसको मुसलमान ही मान रहा है। जानबूझकर उसको मुसलमान मानना, ये जानते हुए भी कि इसने हमारे नबी की शान में तौहीन की है, तब उस पर हुक्म कुफ्र आता है। ठीक है सर? हाँ, मेरा एक कहना है, मेरी हर ऑडियो में आप सुन लेंगे, शायद कोई ऑडियो बचती होगी जिसमें मैं बताता नहीं हूँ। देवबंदियों में 85% से ज्यादा लोग धोखे में हैं। 85% सर। 15% वो लोग हैं जो इनमें पढ़ते हैं, इनमें जमातों में रहते हैं और ये जानते हैं कि हाँ इन किताबों में गुस्ताखियां हैं, और उन 15% में भी छांट हो जाएगी। बाकी 85% लोग धोखे में हैं। अच्छा, ये जो है किताब, जहाँ तक की बात है, जी सर, तो हमारा तो ये भी अकीदा है, किसी ने कोई किताब लिखा, हाँ, चाहे देवबंदी की ग्रुप की कोई लिखे या बरेलवी की ग्रुप से लिखे या एनी कोई भी हो, जी सर, ठीक है ना, कोई भी ग्रुप की लिखे, उसके किताब से हमारी क्या मतलब? ना तो हमारा उसके ईमान से उससे मतलब है, ना तो हमारा कोई सजा पनिशमेंट से कोई मतलब है। हमारा हाँ मतलब है सर, और हमारा रिलेटिव तो सिर्फ हदीस और कुरान पर है। हाँ मतलब है सर, हदीस और कुरान के ताल्लुक से ही मतलब है। मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब का ऐलान है। अगर एक मिनट नूर हसन साहब, अगर आप एक बुक लिख दीजिए, 2 मिनट के लिए मान लीजिए, आपके बुक को हम पढ़े या ना पढ़े उससे मेरे ईमान में क्या फर्क पड़ने वाला है? 1 मिनट। या पढ़ भी लिए तो कहानी पढ़ ली, हम छोड़ दिए। जी सर 1 मिनट। आप जिस रेलवे स्टेशन में रहते हैं वहां के कानून के खिलाफ अगर आप कुछ करेंगे तो वहां के जो अफसर लोग हैं, जो आपसे ऊपर या आपसे नीचे हैं, तो क्या आपको कुछ नहीं कहेंगे कि सर आप ये क्या कर रहे हैं? या जो आप करेंगे अपनी मनमानी, आपको अपनी मनमानी करने देंगे? नहीं, जो रेलवे का जो नियम है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। फॉलो करना पड़ेगा ना। तो जो रेलवे का नियम कानून है वो ज्यादा बड़ा है या मेरे रब ने जो इस्लाम का कानून बनाया है वो ज्यादा बड़ा है? वही इस्लाम जो बनाया है, हदीस और कुरान, वही कानून बड़ा है। और तो जब मेरे रब का कानून बड़ा है, हाँ सर रुकें, मेरे रब का ऐलान है, मेरे रब का फरमान है, मेरे आका का फरमान है कि दुनिया जो जिससे मोहब्बत करेगा, जो जिससे मोहब्बत रखेगा, उसी के साथ मैदान महशर में हिसाब व किताब होगा। तो बताइए कौन ऐसा बंदा है कि अब इस हदीस पर अमल करके, इस हदीस को समझ के, इस हदीस को सुन के गुस्ताखे रसूल से मोहब्बत करेगा? अगर इंसान इस दुनिया में रह के गुस्ताखे रसूल से मोहब्बत करता है तो फिर उसी के साथ मैदान महशर में हिसाब व किताब होगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। और जो दुनिया में ईमान वालों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, तो उनका हिसाब व किताब, उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा, उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। सर ये है रब का कानून। हाँ, तो ये आपकी भी सर, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ये देखें कि कौन हमारे दीन का दुश्मन है, कौन हमारे रसूल का दुश्मन है, कौन हमारे रब का दुश्मन है, और कौन हमारे रब का वफादार है, हमारे रब का अच्छा बंदा है ना? गुनाहगार तो हम हैं, हमारा हर कदम गुनाहों में जो है उठता है ना? कौन हमारे नबी का वफादार है,
گناہ ہم کر رہے ہیں، گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر حضور سے محبت کرتا ہے بندہ. ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی. سمجھے کیا کہا کہ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے. اچھا پھر بولے یا رسول اللہ بس اتنا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سچے دل سے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ نمازیں ان کے پاس تھیں، روزے ان کے پاس تھے، دنیا کا ہر اچھا عمل ان کے پاس تھا، کسی عمل کو پیش نہیں کیا. کہا یا رسول اللہ بس میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا محبت ہے. ہاں اگر کوئی چیز آخرت میں کام آنے والی ہے تو وہ ہے حضور کی محبت. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی ہم سے نمازوں میں غلطیاں ہو رہی ہیں، ہے نا، یہ ہم بھی نہیں جانتے، مگر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز کو قبول فرما رہا ہے. اس کی ذات پر یقین ہے، ہے نا. اللہ نے کہا نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور جس طرح بتایا گیا کہ اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، وہ ارکان بھی ضرور نبھانے چاہیے انسان کو، ہے نا. بہرحال تو قبول کرنے والی ذات خدا کی ہے. بہرحال اس کے آگے اور میں کچھ آپ کو کچھ بتانے والا تھا. میں نے آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہم کو، شکریہ. اور یہ بات، اور باقی یہ بول رہے کہ اس کو یوٹیوب پر ریکویسٹ ہے میرا کہ آپ ہاں لوگوں کے لیے کچھ مطلب نصیحت کر دیجئے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ کوئی اچھا پیغام دیجئے تاکہ لوگوں کو کچھ ایک اچھا پیغام پہنچے، اور اس بات سے بہت لوگوں کو جو ہے نا بات سمجھ آئے گی. سر کوئی لوگوں کو اچھا پیغام دے دیجئے. میرے ساتھ ایک اور حضرت، جی سر، ہاں لوگوں کو لیے ڈال دیں گے، اور اس سے اچھا ایک میسج جائے گا سر کہ ہاں ابھی بھی جو افسر لوگ ہیں وہ بھی مطلب تلاش میں ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے. آپ اپنی طرف سے لوگوں کو ایک اچھا پیغام دیجئے سر. ہم اگر آپ کو اس کو پہلے فرسٹ ٹائم یہ ہے کہ ہم تو ریکویسٹ آپ سے کر رہے ہیں کہ اس کو یوٹیوب پر نہ ڈالیں سر. لوگوں کی اصلاح کے لیے سر، میرے لیے نہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے. میرے جو سنی بھائی ہیں جو ادھر ادھر مطلب دھوکے میں جماعتیوں کے ساتھ ہیں، وہابیوں کے ساتھ ہیں، ان کو آپ کوئی اچھا پیغام دیجئے سر، اور بولیں کہ آپ کو جتنا علم ہے اسی کے حساب سے آپ بول دیں سر. ہم اگر آپ جب ریکویسٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کی بات کو مانتا ہوں. اگر جی ہم سر، کہنا چاہیں گے اچھا پیغام دے دیجیے. کسی کو اگر پیغام دینا چاہیں ہیں تو ہم لوگوں کو یہی کہنا چاہیں گے کہ جو بات ہم سے ابھی ہوئی ہے نور حسن صاحب سے، یہ بات سچ اور صحیح ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اور اس سے بحث نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جو ایمان آپ کی بچنی چاہیے، جس میں سے پہلا کلمہ جو بتایا گیا ہے، اور اس پر آپ کو پورا بلیو ہونی چاہیے. اور اس دھرتی پر جو بھی انسان ہے، وہ انسان اگر ہے تو اگر وہ کچھ ایسا کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو انسان تو مسلمان کا کوئی اس کا کوئی نبی اور پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا. نبی اور پیغمبر مسلمان کا ایک ہی ہے، اور اسی کو آئیڈیل ماننا چاہیے، باقی دنیا میں کسی کو نہیں ماننا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس ٹائم جی ماشاءاللہ آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہی. اس ٹائم پہ ایک فتنہ اٹھا ہے اور باقی سلیم بن حنیف کا. کسی کو ایک منٹ، ابھی اپنی بات سے کسی کو اگر آپ کوئی بھٹک گیا ہے، میرا بھائی کچھ غلط کر رہا ہے، تو آپ اپنی باتوں سے ان کو صحیح راستہ پہ لے آئیے. اپنی باتوں سے آپ میں، اور جب آپ اپنی بات سے اپنی راستہ پہ لے آئیے گا تو اب آپ کی یہ چھمتا کا اندازہ لگے گا، تب مانے گا کہ میں ایک چور ڈاکو کو بھی ایک اچھا انسان بنا دیا.
मेरे गौसे आजम ने और क्वालिटी पता चलेगा। बे शक सुभान अल्लाह। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि चोर को जवाब चोर से देना है तो फिर वो रिएक्शन हो जाएगा। सर एक चीज मैं यहाँ बता दूं, हम अल्लाह के रसूल की पुलिस हैं और आप कानून की पुलिस हैं। आपका भी काम ये है कि जो दुनियावी कानून का मुजरिम है उसको आप उसी हिसाब से सजा दें जो उस पर बनती है ना सर। आप पकड़ते हैं जो जगह जगह चौकी हैं, थाने हैं, जो सरकारी ऑफिस हैं, तो ये इसीलिए बनाए गए हैं कि किसी इलाके में कोई जुर्म ना हो, किसी के ऊपर कोई अत्याचार ना करे और उस पर जो प्रशासन है निगाह रखते हैं, नजर रखते हैं प्रशासन की तरफ से। मतलब अब तो हाल ये है कि माशाअल्लाह इतना अच्छा निजाम हो गया है कि वो जो हमारे मतलब 102 नंबर गाड़ी सब तरफ घूमती फिरती है, चलती फिरती है हमारे इधर यूपी के इलाके में। उधर का पता नहीं सर, आपके तरफ बॉम्बे में क्या सिस्टम है क्या नहीं, ताकि किसी को कोई लूटे नहीं, किसी को कोई कत्ल ना करे, किसी को कोई नाजायज सताए नहीं। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, जुर्म में सारी चीजें आ गई, कोई किसी तरह का किसी पर कोई जुल्म ना हो, यही जुर्म है। अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उससे बचाने के लिए कानून की तरफ से बहुत सारा प्रशासन है, वो प्रशासन हमारी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने अगर हमें कुछ इल्म दिया है और अपने हबीब की हमारे दिल में मोहब्बत डाली है तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो भाई हैं, नौजवान भाई जो धोखे में गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जहां से उनके ईमान के लुटने का खतरा है, जहां से उनका ईमान बर्बाद हो सकता है, हम उन लोगों को बचाते भी हैं और खुलेआम बोलते भी हैं कि अगर उनमें से कोई भी हमसे बात करना चाहता है तो आके सामने से बात कर ले, चाहे फोन पर बात कर ले, जिस तरह चाहे वो हमसे बात करे और अपने आप को हक पर साबित कर दे। गुलामी के लिए तैयार हैं, हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे। अगर सरेंडर आदमी किसी का, देखिए कायल जो होता है जी सर, अगर आपको अगर हम अभी आप बोलिएगा कि चलिए तारिक अनवर का आप कायल हो जाए, अगर आपको 10 को गाली दे देंगे तो आप मेरा कायल होइएगा? नहीं होइएगा जी, नहीं। ठीक है ना। हम अपनी बात को कितनी दलील और कितनी सच्चाई के साथ, कितनी सोख्तली और कितनी नरमी के साथ आपके पास अपनी बात को हम रख पाए, ताकि क्योंकि किसी को अपनी बात मनाना, ठीक है ना, अभी 2 मिनट के एक को पंचायत स्तर पर इलेक्शन होता है, किसी को कोई कहता है एक को बात मान लेने के लिए तो वो बात नहीं मानता है, जी सर। हाँ, और किसी को अपनी बात से सहमत करवा देना कि यही सच है और यही गलत है जी, तो उसमें कितनी नरमी और कितनी अच्छाई से बात को उसके सामने रखना पड़ेगा जी, ठीक है ना। तो वो बात ये है कि अपनी वो बताने वाला और समझाने वाले पर डिपेंडेंट करता है। अगर आप अपनी बात से किसी को सहमत करवा दिए तो फिर आपकी जीत है, वरना ऐसे बहस हो जाना, ये हो जाना, वो समझिए कि फिर वो टाइम के वेस्ट है। आदमी को वो सब चक्कर में रहना नहीं चाहिए, झूठ मूठ करके इधर उधर करना। अगर आपको किसी मिशन में अगर कोई है, हम ही अगर किसी मिशन में हैं, कोई भी मकसद से अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, कर रहे हैं जी सर, तो अपना एम होनी चाहिए आदमी को कि हम अगर किसी को गलत चीज से हमको रोकना है जी सर, तो आप कैसे उसको डील करना है, नहीं तो वरना ऐसे ये करना वो ठीक नहीं है कि 10 तो उनको कोई गाली बक दिया, 10 तो आपको बक दिया, ये आप उनको गलत, उनको ये गलत, उनको ये गलत, वो फिर बात नहीं है सर। असल में बात ये है दरअसल कि मैं बड़े प्यार से बात करना चाहता हूँ, मगर प्यार से उन्हीं लोगों से बात होती है जो सामने से प्यार से बात करते हैं। जब नहीं करे प्यार से बात तो उनको छोड़ दीजिए जी। एक डीएसपी साहब थे, आप बदनामी, आप फिर अपनी बदनामी क्यों लेना चाह रहे हैं? जी सर, अगर वो आपको गाली दे रहा है तो आप हमसे ज्यादा बातचीत करते हैं, उतना बड़ा एक्सपर्ट तो हम नहीं है किसी कॉन्फ्रेंस को डील करने का। जी सर। तो आप ये देखिए, जो भी बड़े होते हैं जी, तो जब भी कहीं पर कुछ गैदरिंग होने की चांसेस होता है वो साइड होके निकल जाता है जी, है ना। ये दुनिया का रोल रहा है जी, रिवाज रहा है, समझे ना। अगर कोई बड़ा है, अगर कोई बड़ा कोई छोटा,
जो है देखिएगा समाज में भी कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो बड़े हैं हर चीज में, तो वो छोटे को इग्नोर करके चलते हैं कि अगर हम उनसे मुंह लगाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, बात सही है सर। असल में अगर हम इनके उलमा से कोई आपके पास वोल्डर मिलता है जी, तो आप उसको इग्नोर करके चलिए। अगर वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए तो फिर उनसे आप अपनी बात को उसको सहमत करवा दीजिए। सर आपने मेरी कितनी ऑडियो सुनी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5? हाँ, हम 2-3 ऑडियो सुने हैं सर। अगर आपने मेरी पूरी ऑडियो सुन ली तो आपको सर बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और आप जो भी ऑडियो सुनेंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने अगर लास्ट तक 10-5 ऑडियो सुन ली तो एक भी ऑडियो आप लास्ट में अधूरी नहीं छोड़ेंगे। हजरत, हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इतना जी सर, आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, कीजिए। शुक्रिया। और जिस हिसाब से आप हमसे बात किए हैं ऐसे ही कीजिए। अगर अभी भी हम अगर आपको गाली दें जी, तो अगर गाली दें क्योंकि आप हमसे ऊपर हैं, ठीक है ना? नहीं सर, मैं ऊपर नहीं हूँ, बहुत छोटा सा एक अदना सा इंसान हूँ। हाँ, नहीं ऊपर है, यानी जिस काम के लिए कर रहे हैं उस काम में हमारी कुछ पहुंच नहीं ना है, जी जी, की जानकारी हमको नहीं ना है जो काम आप कर रहे हैं। इस हिसाब से आपको बोलने आप ऊपर हैं हमसे। फिर भी हाँ, मगर मैं अपने आप को ऊपर नहीं मानता सर। मैं तो एक अहले सुन्नत का एक जर्रा हूँ। ही नहीं, ये बड़े लोगों का ये जो है ना ये क्वालिटी होता है कि जो बड़े अपने आप को कह देगा कि मैं बड़ा हूँ, 30 मार खान हूँ, तो फिर वो बड़ा नहीं होता, ठीक है ना? नहीं सर, इसमें बड़ा का चर्चा बड़ा को समाज के लोग करता है, वो खुद दिखता है कि कौन बड़ा है कौन ये है। अपने मुंह से कहने से उसे अपने मुंह से सब कोई बोलेगा कि मैं खराब हूँ। शोर डाकू भी बोलता है कि मैं अच्छा हूँ। नहीं, वाकई मैं तो एक जर्रा हूँ अहले सुन्नत का सर। बस अल्लाह तबारक व तआला इस खिदमत को कबूल फरमा ले। आपसे रिक्वेस्ट मेरा यही है कि अगर आपसे ऐसी कोई आदमी बात कर ले जो गाली गलौज पर उतर जाए जी, तो बेहतर है कि आप उनसे बात ही ना करें। हाँ सर, मैं फोन काट देता हूँ। और बहुत सारे ऐसे धमकियों वाले वैसे गाली गलौज क्या जो है वीडियो को लोड भी ना करें। जी जी जी, उसको लोड भी नहीं करना चाहिए जी, ठीक है ना? उस बात को वहीं पर खत्म होनी चाहिए। हाँ, जब एक अच्छा पैगाम, जिस तरह से अभी हमारी आपसे बात हुई है, अगर ऐसा जब वीडियो ऑडियो जाएगा यूट्यूब पर जी सर, तो कोई भी बात सुनने के लिए लोग चलेगा। चलो, अगर ऐसी बात पर कोई भी आपको अगर कॉल करेगा तो समझिए कि कोई समाधान के लिए कॉल कर रहा है। हाँ सर, मगर आप जैसे समझदार लोग सर सब नहीं होते सर। गाली गलौज वाला पर वीडियो सुन करके अगर आपको कॉल करेगा तो यूँ समझिए कि वो भी आपको 10 गाली देने के लिए कॉल किया है और आपसे 10 गाली सुनने के लिए कॉल किया है। तो फिर वो आपके चैनल का काम यही रह जाएगा। जी सर, मगर मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके हमारे भाइयों को अच्छा एक पैगाम पहुँचना चाहिए सर। हाँ, चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समझाने में मैं